multiple access protocols. So three protocols are defined in it: random access, control, and channelization. Okay. So in random access protocols, कौन से protocols present है? Aloha, CSMA, carrier sense multiple access, carrier sense multiple access collision detection, और ये क्या है? Collision avoidance. Aloha, what is Aloha? ठीक है, Aloha में थ्री टाइप से Aloha है: प्योर Aloha एंड स्लॉटेड Aloha. So what is Aloha? Aloha protocol means in Aloha protocol the medium is shared between the stations. The medium is shared between the stations. Okay. So क्या हो सकता है? When a station sends data, another station may also attempt to send the frame. Okay. So when a station is sending the data, another station may attempt to do at the same time. Okay, so the data from the two stations collide. Okay, and data will become modified or lost. ये हो सकता है. तो ठीक है, अलोहा में जब भी स्टेशन के पास डेटा होता है वो उसको सेंड कर देता है एट एनी टाइम. सो इन प्योर अलोहा में व्हाट वी आर डूइंग, सी पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन बिटवीन डिफरेंट स्टेशन इसमें भी है. बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग इन प्योर अलोहा, each station sends a frame whenever it has frame to send, right? So since there is only one channel to share, एक ही चैनल लोग शेयर कर रहे हैं, so there is a possibility of collision between frames from different stations. अभी यहाँ पे देखो, see this figure of pure Aloha, 4 stations are there. कितने stations है? There are 4 stations. ठीक है, so this figure is showing that each station sends 2 frames. Each station sends 2 frames, right? Each station is sending 2 frames. So there are total 8 frames. Okay, the total 8 frames on the shared medium. Shared medium है, हाँ, एक medium share हुआ है. तो यहाँ पे you can observe this only frame number we can give labeling 1, 2. Suppose ये 1.2.1 है, ये 1.2.2 है फ्रेम नंबर, ये 2.1, ये 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 and 4.2. So only frame number 1.1, that is from station 1, and frame number 3.2 जो कि स्टेशन नंबर 3 में है. फ्रेम 1.1 एंड फ्रेम 3.2. ठीक है, so only frame 1.1 from station 1 and frame 3.2 from station 3 उन लोग सर्वाइव हो रहे. these two frames will survive, right? यहाँ पे देखो बाकी अदर फ्रेम्स जो है, ये फ्रेम से कोलाइड हो जाएगा, ये फ्रेम से सेम टाइमिंग हो जा रहा है, ये फ्रेम से, तो ये दोनों देखो साथ में आ गए, दिस वन एंड दिस वन. ठीक है, फ्रॉम दिस फिगर यू कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं, फ्रेम नंबर 1.1 एंड फ्रेम 3.2 ही सर्वाइव हो रहे, बिकॉज उन लोग में ही कोलिजन नहीं हो रहा है. ठीक है, now see how collision is minimized in this pure Aloha. Pure Aloha protocol relies on acknowledgement from the receiver. Pure Aloha जो है, it relies on the acknowledgement from the receiver. So when a station wants to send a frame, okay, when a station sends a frame, it expects the receiver to send an acknowledgement. So if the acknowledgement does not arrive, अगर acknowledgement नहीं आता है, sender wait कर रहा है receiver के acknowledgement के लिए. If the acknowledgement is not arrived, okay, so after a timeout period, the station will assume that टाइमर एक्सपायर हो जाएगा, तो सेंडर विल अज्यूम दैट कि फ्रेम क्या हो गया है, फ्रेम हैज बीन डिस्ट्रॉयड. फ्रेम हैज बीन डिस्ट्रॉयड, तो वो वापस से फ्रेम को रीसेंड करेगा. ओके, तो ये टेक्निक से थोड़ा, वी कांट से दैट कोलिजन पूरा इसमें अवॉइड हो रहा है, कोलिजन पूरी तरीके से आ रहा है, बट समवॉट थोड़ा कोलिजन क्या हो सकता है, कम हो सकता है बाय एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म. ओके, तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म में सेंडर इज मतलब सेंडर क्या करता है, सेंडर वेट्स फॉर द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर. अब एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, कब तक, वो एक टाइम रहता है. ठीक है, तो टाइम आउट पीरियड के बाद सेंडर विल अज्यूम दैट फ्रेम इज डिस्ट्रॉयड
and the sender will resend the frame. And what is the meaning of collision? Okay, if the two or more sessions trying to send the frame at the same time, that is collision. That is collision. So if suppose if all the station try to resend the frame after the timeout, टाइम आउट होने के बाद वापस सब फ्रेम वापस रीसेंड हो रहा है तो वहां वापस से कोलिजन हो सकता है। ठीक है, तो प्योर अलोहा फेज में इन प्योर अलोहा प्रोटोकॉल कोलिजन इज देयर, बट रैंडम टाइम पे जो फ्रेम सेंड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे रैंडम टाइम पे ना, कोई टाइम फिक्स रैंडमनेस ही क्या कर रहा है, रैंडमनेस विल इज मतलब हेल्पिंग इन टू अवॉइड कोलिजन। द रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम में हम लोग सेंड कर रहे थे तो वो रैंडमनेस इटसेल्फ इन प्योर अलोहा क्या कर रहा है वो, अवॉइडिंग दी कोलिजन, हेल्प इन अवॉइडिंग कोलिजन। ओके, कंप्लीटली अवॉइड नहीं हो रहा है इसमें। इन स्लॉटेड अलोहा टाइम डिवाइडेड इनटू इंटरवल्स, टाइम डिवाइडेड इनटू इंटरवल्स, द सेंडिंग स्टेशन वेट्स अंटिल द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट डिस्क्रीट इंटरवल। मतलब सी, सब स्टेशन में टाइम डिवाइड किया गया, वन इंटरवल इक्वल टू वन फ्रेम। एक इंटरवल मीन्स एक फ्रेम भेजने के बाद क्या होगा, द सेंडर स्टेशन वेट करेगा अंटिल द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट, उसका इंटरवल कब आएगा। इसमें स्टेशन इज वेटिंग फॉर द इंटरवल, इस स्टेशन इज वेटिंग फॉर द इंटरवल, इंटरवल मीन्स उसका नेक्स्ट टाइम कब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्लॉटेड अलोहा के इम्प्रूवमेंट ऑफ प्योर अलोहा एंड अलोहा है। ठीक है, इट इज इम्प्रूव वर्जन, टाइम इज स्लॉटेड एंड अ पैकेट कैन ओनली बी ट्रांसमिटेड एट द बिगिनिंग ऑफ वन स्लॉट। कब, पहले स्लॉट के टाइम पे जब तुम फर्स्ट टाइम फ्रेम सेंड कर रहे हो। ठीक है, टाइम इज स्लॉटेड एंड अ पैकेट कैन ओनली बी ट्रांसफर द बिगिनिंग ऑफ वन स्लॉट। मतलब जब तुम्हारा टाइम आएगा, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ वन स्लॉट फर्स्ट फ्रेम का, देन ओनली एट दैट टाइम यू कैन सेंड द फ्रेम। तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है कोलिजन इसमें। सी दिस फिगर ऑफ दिस स्लॉटेड अलोहा, दिस वन, स्लॉट वन, स्लॉट टू, स्लॉट थ्री, स्लॉट फोर, टाइम डिवाइड हो गया स्लॉट्स में, स्लॉट, ठीक है, टाइम डिवाइड हो गया स्लॉट में 1 2 3 4 5 एंड 6। फर्स्ट स्लॉट में फ्रेम 1.1, सेकेंड स्लॉट में 2.1। ठीक है, फर्स्ट स्लॉट में देखो क्या क्या हो रहा है, फ्रेम 1.1 गया, फ्रेम 2.2 गया स्टेशन वन से, स्लॉट टू में 2.1 गया 2.2, स्लॉट थ्री में 3.1 3.2, फिर यहाँ पे स्टेशन फोर क्या कर रहा है, 4.1 4.2। मीन्स यहाँ पे भी इस स्टेशन इज सेंडिंग टू फ्रेम्स, राइट, इस स्टेशन इज सेंडिंग टू फ्रेम्स। ठीक है, एक इंटरवल का मीनिंग एक फ्रेम है, एक इंटरवल का मीनिंग क्या है, एक फ्रेम है। तो स्टेशन वन ने दो फ्रेम सेंड किया, स्टेशन टू ने दो फ्रेम, स्टेशन थ्री ने टू फ्रेम्स। ठीक है, देन स्टेशन फोर ने भी टू फ्रेम सेंड किया है। ठीक है, एक फ्रेम मीन्स एक स्लॉट मीन्स एक इंटरवल फ्रेम का, ये एक ही टाइम पे हो रहा है, स्टेशन टू और स्टेशन थ्री का फ्रेम सेम टाइम पे, तो स्लॉट टू, ये दोनों एक ही टाइमिंग पे आ रहे हैं, स्लॉट थ्री, स्लॉट फोर में एक ही फ्रेम गया, स्लॉट फाइव में एक ही फ्रेम गया, स्लॉट सिक्स में भी एक ही फ्रेम गया है। तो स्लॉटेड अलावा में देयर इज अ चांसेस ऑफ कोलिजन, अभी भी कोलिजन हो सकता है, बिकॉज सबको अपना फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम नहीं मिला है। ठीक है, अभी भी कोलिजन हो सकता है। सी दिस वन, दिस यहाँ पे कोलिजन समवॉट अवॉइड कर सकते हैं हम लोग, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, तो सीएसएमए प्रोटोकॉल का क्या काम है, स्लॉटेड अलावा क्लियर है, व्हाट इज स्लॉटेड अलावा। स्लॉटेड अलावा में स्टेशन क्या है, जो स्टेशन is allowed to send only at the beginning of the
स्लॉट, अपने स्लॉट के बिगिनिंग में ही फ्रेम सेंड कर सकता है। ठीक है, तो अगर स्टेशन ने ये चांस मिस कर दिया तो उसको वेट करना पड़ेगा अंटिल दी उसका स्लॉट कभी आएगा। स्लॉट्स डिवाइड, सबके टाइम डिवाइड हो गए, ये टाइमिंग पे तुम, ये टाइम पे तुम, ये स्लॉट में, ये स्लॉट्स में तुम सेंड कर सकते हो स्टेशन टू। तब जब तक उसका स्लॉट नहीं आएगा तो जब तक उस स्टेशन को वेट करना पड़ेगा। अगर दो स्टेशन का टाइम स्लॉट सेम है तो क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। सी एस एम ए, व्हाट इज सी एस एम ए? सी टू मिनिमाइज द कोलिजन, to minimize the chances of collision, the CSMA method was developed. To minimize the chances of collision, CSMA method was developed. So the chances of collision can be reduced. See, अगर chances जो है collision का can be reduced if a station, ये देखो यहाँ पे sense लिखा है, ठीक है। So the chances of collision can be reduced if a station senses the medium before trying to use it. मतलब मीडियम को सेंस करना, अभी स्टेशन के पास फ्रेम है तो बिफोर ट्राइंग टू सेंड द फ्रेम, स्टेशन को पहले मीडियम का क्या स्टेटस है, मीडियम बिजी है क्या, कौन सा स्टेट है मीडियम का, वो सेंस करना चाहिए पहले। तो सीएसएमए में क्या होता है, चांस जो है कोलिजन का, the chances of collision can be reduced if a station senses the medium before trying to use it. The CSMA requires that each station first listen to the medium before sending. पहले सुनना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए, पहले स्टेशन से लिसन करना चाहिए बिफोर ट्राइंग टू सेंड दी फ्रेम। किसमें होता है ये, सीएसएमए में, ठीक है, लिसन। अब इट इज लाइक दी सेंटेंस लिसन बिफोर टॉक, बोलने से पहले सुनो क्या सामने वाला बोल रहा है, देन यू कैन स्पीक ना। तो अगर साइमल्टेनियसली अगर दो पर्सन बोलते रहे, किसी का सुनेंगे ही नहीं तो क्या होगा, आपस में कोलाइड होना चालू हो जाएगा। ये तुम रियल लाइफ अपना एग्जांपल ले सकते हो। अगर दो पर्सन आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं और दोनों सुन ही नहीं रहे एक दूसरे का, अपना ही अपना बोल रहे, तो क्या हो जाएगा, उनके जो भी वर्ड्स है वो कोलाइड हो जाएंगे, राइट। तो लाइक दिस इन सीएसएमए क्या होना चाहिए, हम लोग को क्या करना चाहिए, यू वांट टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ कोलिजन, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, सेंस होता है पहले बिफोर सेंडिंग द फ्रेम। जो सेंस, क्या सेंस होता है, मीडियम, मीडियम सेंस होता है, ओके। द सेंस बिफोर ट्रांसमिट, सेंस बिफोर ट्रांसमिट, सीएसएमए में याद रखो, सेंस बिफोर ट्रांसमिट। नाउ सी दिस ह्यूमन एनोलॉजी, यहाँ पे लिखा है डोंट इंटरप्ट अदर्स। तो सेंस बिफोर ट्रांसमिट है, किसी को मतलब ह्यूमन एनोलॉजी पे ये डोंट इंटरप्ट अदर्स, किसी को डिस्टर्ब मत करो, मतलब बीच में इंटरप्ट मत करो। कोलाइड मीन्स द टू स्टेशन सेंडिंग द फ्रेम एट द सेम टाइम, तो फ्रेम कोलाइड हो जाएगा। हाँ, आपस में मतलब दोनों का ये हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ओके, नाउ सी दिस इन सीएसएमए क्या करना है, पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन रिड्यूस करना है, बट वी कैन नॉट एलिमिनेट इट, राइट। इसमें हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सीएसएमए वी कैन रिड्यूस द चांसेस ऑफ कोलिजन बट वी कैन नॉट एलिमिनेट इट, ओके। नाउ सी दिस स्टेशन जो है यहाँ पे दिस फिगर, स्टेशन ए बी सी डी, दिस स्टेशन आर कनेक्टेड, ये स्टेशन कनेक्टेड है भाई, मतलब शेयर्ड चैनल के थ्रू दिस स्टेशंस आर कनेक्टेड, राइट। तो सीएसएमए कैन रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन बट इट कैन नॉट एलिमिनेट इट, याद रखो ये पॉइंट, ठीक है। रीजन इज गिवन इन दिस फिगर, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेशंस आर कनेक्टेड टू अ शेयर्ड चैनल, द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन स्टिल exists, the possibility of collision still exists because of
प्रोपोगेशन डिले, बिकॉज ऑफ प्रोपोगेशन डिले। अभी देखो, व्हेन अ स्टेशन सेंड्स अ फ्रेम, ठीक है, स्टेशन जब फ्रेम सेंड कर रहा है, तो जो फॉर द सी व्हेन अ स्टेशन सेंड्स द फ्रेम, तो फॉर द फर्स्ट बीट टू रीच एवरी स्टेशन, अभी ये फ्रेम और फ्रेम नंबर ए, ठीक है, फ्रेम नंबर ए इज सेंडिंग द फ्रेम, तो जो फर्स्ट बीट है वो कहाँ पे जाएगा, सब स्टेशन पे जाएगा, बी पे, सी पे, डी पे, जितने भी स्टेशन है, ठीक है। तो इट टेक्स टाइम टू रीच टू दी स्टेशन, ठीक है, और सब स्टेशन को सेंस करेगा, बी बी जितने भी प्रेजेंट है, बी सी डी, सब स्टेशन क्या करेगा, उसको सेंस करेगा। मीन्स स्टेशन क्या, सेंस दी मीडियम, सेंस करेगा बी वाला। अगर सेंस किया उसने, ए ने क्या किया, बी को सेंस, तो उसको बी वाला आइडल दिखा सेंस करने पे, ठीक है, बी वाला आइडल है एट टाइम टी वन, मतलब एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम पे, सी दिस फिगर, एट रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, दैट इज लेट अस टेक टी वन, कोई भी एक टाइम पे ए ने क्या किया, ए विल सेंस स्टेशन बी, एंड इफ स्टेशन, एंड ए को क्या लगा कि बी क्या है, आइडल है, तो इट विल, ए क्या करेगा, सेंड करेगा फ्रेम को, ठीक है। नाउ लेट अस कंसीडर एट टाइम टू, दूसरे कोई टाइम पे अभी, ठीक है, स्टेशन सी ने क्या किया, सेंस किया मीडियम को, और उसको क्या लगा, सेंस करने पे स्टेशन सी सेंसेस द मीडियम, फाइंड्स इट आइडल, ठीक है, तो क्या करेगा वो, उसको आइडियल लगा, तो जो फर्स्ट बीट जो आया स्टेशन बी से, समझो वो रिसीव नहीं हुआ सी के पास, तो स्टेशन सी क्या करेगा, वापस से फ्रेम सेंड करेगा। बात को समझ रहे हैं, यहाँ पे टाइम टी वन में स्टेशन स्टेशन बी को क्या लगा, स्टेशन ए को क्या लगा कि बी क्या है, आइडल स्टेट पे, सेंस करने के बाद, तो ये क्या करेगा, अपना डेटा सेंड करेगा ए बी को, ठीक है। एट अनदर टाइम, एट टाइम टू, लेट अस कंसीडर स्टेशन सी ने क्या किया, यहाँ पे देखो टी टू, स्टेशन सी सेंसर्स द मीडियम एंड फाइंड्स आइडल, स्टेशन सी सेंसर्स द मीडियम, और उसको क्या लगा कि आइडल है, ठीक है, बिकॉज ये टाइम पे क्या है, जो स्टेशन बी है वो, इसलिए स्टेशन सी को क्यों आइडल लगा बी, क्योंकि बी में क्या हुआ है, सी या जो फर्स्ट बीट जो स्टेशन के पास, बी के पास गया है, वो अभी तक सी के पास आया नहीं है, समझ रहे हो, टाइम टू पे उसको आइडल दिख रहा है मीडियम, पर सी के पास डेटा रिसीव नहीं हुआ, जो बी ने, ए ने बी को भेजा है, बी ने सी को नहीं भेजा है, तो सी के पास रिसीव नहीं हुआ, राइट। तो सी क्या करेगा, अपना डेटा भेजेगा, उसको दिख रहा है अरे मीडियम फ्री है, तो वी कैन सेंड दी फ्रेम, ठीक है, डेटा सेंड कर सकते हैं। तो दोनों के, अभी इसके पास भी है और इसके पास भी, दोनों सेम टाइम पे क्या कर रहे हैं, डेटा सेंड कर रहे हैं, मतलब टू, जो टू सिग्नल से वो कोलाइड हो जाएंगे एंड द बोथ द फ्रेम्स विल बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे देखो, ये इतना एरिया है, फर्स्ट एरिया ऊपर वाला, नीचे वाला एरिया वेयर बोथ सिग्नल एग्जिस्ट, दोनों का सिग्नल है इसमें, ए बी और सी डी का। ए बी में टाइम टी वन कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, सी और डी का टाइम टी टू। सी बिकॉज ऑफ प्रोपोगेशन डिले इन सी एस एम में कोलिजन हो सकता है, बिकॉज ऑफ देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन, ठीक है, क्यों पॉसिबिलिटी है इसमें, बिकॉज ऑफ प्रोपोगेशन डिले, सीएसएमए में प्रोपोगेशन डिले की वजह से देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन। तो व्हाट इज प्रोपोगेशन डिले, सी व्हाट इज प्रोपोगेशन डिले, प्रोपोगेशन डिले मींस टू नोड्स में नॉट हियर ईच अदर्स ट्रांसमिशन, मतलब ए ने बी को भेजा पर बी ने क्या किया, उसको लिसन नहीं किया, ठीक है, हियर नहीं किया, बी ने उसको हियर नहीं किया, दिस वन, ठीक है, टू नोड्स में नॉट हियर ईच अदर्स ट्रांसमिशन, तो क्या हो जाएगा, डिले हो गया यहाँ पे, ठीक है, बी के पास डेटा है, बी ने आगे फॉरवर्ड नहीं किया सी को,
ठीक है, सी क्या करेगा, सी विल सेंड द फ्रेम अगेन. बिकॉज ऑफ दिस हियरिंग प्रॉब्लम, प्रोपोगेशन डिले का मीनिंग यही है, टू नोड्स में नॉट हियर ईच अदर ट्रांसमिशन, तो दिस इज प्रोपोगेशन डिले. तो इसके वजह से ही कोलिजन हो सकता है इन दिस टेक्निक सीएसए में. कोलिजन क्या हो सकता है, एंटायर पैकेट. ठीक है, कोलिजन होगा तो एंटायर पैकेट तुम्हारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ट्रांसमिशन टाइम वेस्ट हो जाएगा. नाउ सी, सीएसएमए में डिफरेंट टाइप्स आर देयर. ठीक है, आई persistent, आई persistent मेथड, नॉन persistent मेथड. सी, सीएसएमए जो है दो में डिवाइड है, आई persistent एंड नॉन persistent, एंड पी persistent. आई persistent, नॉन persistent एंड पी persistent. यहाँ लिखा है क्या? दिस वन. ओके, यहाँ पे देखो फर्स्ट आई persistent क्या होता है, व्हाट इज आई persistent. तो आई persistent मेथड किस में डिफाइंड है, फर्स्ट इट इज अ टाइप ऑफ सीएसएमए. तो आई persistent मेथड में क्या है, in this method after the station finds the line idle, after the station finds the line idle, it sends its frame immediately. Immediately वो frame send करेगा, if the station finds the line idle, it will send the frame immediately. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, this method has the highest chance of collision. आई persistent method में there is a high chance of collision because two or more stations may find the line idle. कोई दोनों स्टेशन को लाइन आइडल दिखा, समझ रहे हो, दूसरा स्टेशन भी सेंस कर रहा है बी वही सेम टाइम पे, उसको भी तो आइडल ही दिख रहा है, हाँ फ्री है, क्योंकि दोनों ने भेजे नहीं, सिर्फ सेंस ही कर रहे हैं दोनों. और दोनों भी सेंस करने के टाइम पे दोनों को दिखाई दे रहा है कि अरे आइडल, इट इज आइडल नाउ, वी कैन सेंड द फ्रेम. तो बोथ विल मतलब बोथ स्टेशन विल क्या, सेंड द फ्रेम एट द सेम टाइम. तो आई persistent में सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक है ये. अगर स्टेशन को लाइन आइडल दिखता है so it will send the frame immediately. In this eye persistent method, there is a high chance of collision because if two or more stations may find the line idle, and then the collision will occur. Okay, if the two or more stations may find the line idle and send their frames immediately, collision will occur. ठीक है, तो आई persistent मेथड समझ में आया, आई persistent. दूसरा है नॉन persistent. सेकेंड काइंड ऑफ सीएसएमए इज नॉन persistent. नॉन persistent सीएमए, इसमें क्या होता है, इन नॉन persistent सीएसएमए, इफ अ स्टेशन हैज अ फ्रेम टू सेंड, डायरेक्टली उसको सेंड नहीं करेगा. इफ अ स्टेशन हैज अ फ्रेम टू सेंड, फर्स्ट अगर उसको लाइन आइडल दिखा, नॉन persistent, इन नॉन persistent मेथड, इफ अ स्टेशन हैज अ फ्रेम टू सेंड, तो फर्स्ट वो क्या करेगा, सेंस करेगा लाइन को. वो तो आई persistent में भी है, पहले क्या करेगा, वो सेंस करेगा. सेंस करने के बाद उसको क्या लगा, लाइन इज आइडल, लाइन इज आइडल. ठीक है, तो इसमें लाइन आइडल दिखा तो इमीडिएटली इसमें भी वो सेंड कर देगा फ्रेम. इफ द लाइन इज आइडल, इट सेंड्स इमीडिएटली. ठीक है, अगर लाइन आइडल नहीं है, इफ द लाइन इज नॉट आइडल, इट वेट्स अ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम. उसको दिखाई दिया सेंस करने में बिजी है लाइन, रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम वेट करेगा एंड देन वापस से अगेन सेंस करेगा लाइन को. ठीक है, तो नॉन persistent अप्रोच में it reduces the chance of collision because it is very unlikely that two or more stations will wait the same amount of time and retry to send the frame. समझ रहे हो, चांसेस ऑफ कोलिजन इसमें क्यों कम है, बिकॉज सी, सिंपल टेक्निक है एकदम. उसने सेंस किया मीडियम को, आइडल है तो फ्रेम सेंड करना. ठीक है, अगर उसको आइडल नहीं दिखा, बिजी है स्टेशन, तो रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम वेट करेगा वो. ठीक है, रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम वेट करने के बाद आइडल दिखा तो सेंड करेगा.
बिजी दिखा, अगेन रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम वेट करेगा जब तक उसको आइडल नहीं दिखता। तो चांसेस इसमें ये चांसेस कम है। कौन सा चांसेस कम है? कि जो दूसरा स्टेशन है, अदर स्टेशन है, वो भी वही रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम वेट कर, जैसे मैं अभी 2 मिनट्स रुकी हूँ, स्टेशन ए ने 2 मिनट्स वेट किया, उसको बिजी लगा तो वो 2 मिनट्स वेट कर रहा है और अगेन सेंस कर रहा है। ठीक है, तो चांसेस ये कम है कि जो अदर स्टेशन है बी सी जो भी है, वो भी 2 मिनट्स ही वेट कर रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये चांसेस क्या है, कम है कि दो, टू और मोर स्टेशन क्या विल वेट फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम एंड रीट्राई टू सेंड द फ्रेम। रीट्राई कर रहे हैं ना, बिकॉज आइडल दिख रहा है तो वापस रीट्राई कर रहे हैं, मतलब सेंस कर रहे हैं कि अभी अभी बिजी है तो आइडल हुआ कि नहीं। तो चांसेस इसलिए कम है कोलिजन का, बिकॉज it is very unlikely that two or more stations will wait the same amount of time and retry to send simultaneously, right? So this is non-persistent. So see, in this you have to remember सबका ये क्या है, explanation part, सबके अलग अलग टेक्निक है, लिटिल लिटिल डिफरेंस है सब में, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं सब प्रोटोकॉल्स में। So we have covered what we have covered till now. अलोहा और सीएसएमए, अलोहा में प्योर अलोहा, स्लॉटेड अलोहा। सीएसएमए सीएसएमए क्या होता है? व्हाट इज सीएसएमए? इट फर्स्ट सेंसेस द मीडियम बिफोर सेंडिंग द फ्रेम। सो इफ इट फाइंड्स इट्स आइडल इट विल सेंड द फ्रेम इमीडिएटली, अगर नहीं है तो इट विल वेट द रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम। तो इसमें भी काइंड मतलब टाइप्स डिफाइन है। वी हैव सीन आई persistent मेथड एंड देन नॉन persistent, आई एंड नॉन persistent मेथड। आई persistent एंड नॉन persistent।